Good morning, everyone. Today we are going to study about the like and unlike fractions. What is like fractions? You can open your book on the page number 94 so you can understand better. So the like fractions are the fraction which have same denominator, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए. जैसे इस फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 9 है तो दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 9 ही होना चाहिए, तभी ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे. दूसरे एग्जांपल में देखेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन है 14/17, तो इसका अगर डिनोमिनेटर 17 है और दूसरे वाले फ्रैक्शन में 11/17 और उसका भी डिनोमिनेटर 17 है, देन दे आर द लाइक फ्रैक्शन. इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, if the denominators are the same, then the fractions are like fractions. What are unlike fractions? Unlike fractions are when the denominator are different. When denominator are different for fractions or the pair of fractions, then it is a unlike fraction. Like we have denominator here 2 and here we have 3. So both are not equal. Here we have both equal. Right? If they are equal, they are like. If they are not equal, they are unlike. Here we have 17 and 17. They both are equal. Here we have 6 and 9. They both are not equal, and that's why it is in the unlike fractions. Now everyone listen very carefully. You have to find the pair of unlike and like fractions here. I have some questions. Question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So by seeing which one is unlike and which one is like of the pair. So the first one, the denominator is 12 and the denominator is 17. Can you tell me this one is like or unlike? Write in chat fast. Can you tell me this one is like or unlike? Very good. This one is unlike. This one is unlike. So we will, for unlike we will write UN. Okay, for unlike we will write UN. Because the denominators are not equal, this one is unlike fraction. Very good everyone. Now the next fraction is 9/11 and its pair is 7/11. The denominators are 11 and 11. Both are equal. Then this one is like. For like we will write L. So this one is like. Everyone are going to do this very well. Very good beta. Now the question number 3. The fraction having 9 as the denominator. The second fraction is also having 9 as a denominator. Third fraction also having the 9 as a denominator. Tell me, is it like or unlike? This one is also like. Very good. किसको समझ में नहीं आया है अभी तक like और unlike, तो प्लीज बेटा एक बार पूछ लो सर से कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि like क्या होता है, unlike क्या होता है. देखो बेटा, अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन किए तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं. आन्या बेटा देखो, लाइक फ्रैक्शंस के लिए सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए. जैसे हमारे पास यहां भी 9 है, इस वाले फ्रैक्शन का भी और सेकंड फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 9 है. सो इफ दे बोथ आर इक्वल, both the denominator of the fractions are equal, then the fractions are like fractions. जैसे हमारे पास यहां भी 17 है, यहां भी 17 है, दोनों का डिनोमिनेटर 17 है, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा. बट if the denominators are not equal, if the denominators are different, then it is a unlike fraction. Like we have 2 and 3. So these pair of fractions are unlike fraction. Here we have 6 and 9. So these pair of the fractions are unlike fraction. Now you got it. Now we are going on the question number 4 again. The question number 4 is very easy. We have denominator as 3 and denominator as 5. Now tell me, are they equal? Good morning beta. Are they equal? No. If they are not equal, are they like or unlike? Are they like or unlike? Very good. सबका आंसर आना चाहिए चैट में बेटा. Write it fast. So these are the unlike fractions. So next one is question number 5. Very good. Very good. सबका आंसर आ रहा है. Question number 5. Now we have question number 5 as 21 as the denominator and 64 as a denominator. Now tell me,
Are they like or unlike? Are they like or unlike? Very good. Everyone is saying these are unlike fractions because denominators are not equal. Because denominators are not equal, that's why they are unlike fractions. Now the question number 6. Now the question number 6 is 191 upon 911. Here we have 911 and the next fraction is also having 911 as a denominator. Are they equal? Yes sir, they are equal. Are they equal? Yes sir, they are equal. Then they are like or unlike fractions? They are like fractions. हाँ जी, अब किसको समझ में नहीं आया है like fraction और unlike fraction? Tell me that everyone know what is like and unlike fractions fast. Yes, everyone know. Then we are moving to the exercise 7.4. The question number 1 we will do after question number 5 and then उससे पहले हम लोग कर लेंगे question number 2, question number 3, question number 4, question number 5. First we will do question number 2 to 5, then we will do the question number 1. The conversion of unlike to like fractions that we are going to study after the question number 2, question number 3, question number 4 and question number 5. Thank you everyone. अगर सबको समझ में आया like और unlike, then I will going to rub this or does this. जल्दी बताओ बेटा मुझे, सबको समझ में आ गया है? I will not unmute till I will finish this exercise. उससे पहले मैं अनम्यूट नहीं कर सकता हूं बेटा, है ना? चलो, ये एक्सरसाइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था लाइक और अनलाइक सबको समझ में आना चाहिए. बहुत ही इजी है. डिनोमिनेटर इक्वल है तो वो लाइक है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो वो अनलाइक है ना? और बाकी क्वेश्चंस में भी आपको समझ में आ जाएगा दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. सो द ओपन योर बुक ऑन द पेज नंबर 96. Open your book on the page number 96. We are going to do the question number 2 first. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ओपन योर बुक ऑन द पेज नंबर 96. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन द बुक. आपको ये क्वेश्चन बुक में ही करना है बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डू इन द बुक ओनली. आपको बुक में ही करना है. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब आपको बुक में ही करने हैं बेटा. So listen everyone, we have question number 2. Question 2. You have to just put the sign of greater than or smaller than, right? You have to just put the sign. So a option is, I will explain. First listen here. 8 by 9 and 6 by 9. Right? Listen very carefully. What it is saying, 8 by 9 फ्रैक्शन का क्या मतलब है? सर इसका मतलब है if we have a chocolate, अगर मेरे पास चॉकलेट है and it is having 9 parts, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. It is having 9 parts, right? ये 9 parts है किसी चॉकलेट के and 8 by 9 means I have taken how many parts? मैंने कितने parts ले लिए इसमें से? If 8 by 9 is here, then how many parts I have taken? जल्दी बताओ, सभी लोग बताएंगे. How many parts I have taken? Very good, Tanis. I have taken the 8 parts. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8 parts I have taken. Now the next fraction is 6 by 9. Again we have a chocolate of 9 parts, same chocolate of 9 parts. Because the denominators are same, so these are the like fractions. So we have 9 parts, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 parts. Okay, now how many parts I have taken from this one? This is 6 by 9. Then how many parts I have taken? Very good, 6 parts you have taken, sir. So 1 2 3 4 5 6. अब मुझे बताओ किस वाले में से मैंने ज्यादा पार्ट्स ले लिए? इस वाले में से चॉकलेट में से या इस वाले चॉकलेट में से? From which chocolate I have taken more parts? The 8 parts are more than 6. The 8 parts are more than 6. So the sign will be
दिस वन। ज्यादा लड्डू खाओगे तो मुंह बड़ा खोलना पड़ेगा। सो यू अंडरस्टैंड दिस? हैव यू अंडरस्टैंड दिस बेटा? सबको समझ में आया कि हमने क्या किया है? यहां पे हमें फ्रैक्शन अगर पता है कि लाइक है तो उसका बेस सेम होगा, और आपको बार बार चॉकलेट ना बनाना पड़े तो आपको क्या करना है? बस अगर बेस सेम है, जैसे यहां भी 9 है, यहां भी 9 है ना, तो 9 को मिटा दो। अब बताओ कौन बड़ा है? 8 बड़ा है। बस तो हमने 8 को लार्ज बना दिया। बट लेकिन हमें वो लिखना पड़ेगा, है ना, वो लिखना नहीं भूल जाएंगे, वो बस हाथ ऐसे रख लेंगे और हम समझ जाएंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर बी। द क्वेश्चन नंबर बी इज 7/11, 7/11 and 2/11, right? 7/11 and 2/11। बताओ क्या करना है? सर सबसे पहले तो 11 को भूल जाओ। 11 को भूल गए। Which one is greater? Which one is greater? 7 is greater। अब जैसे ही आपको पता लग गया 7 is greater, तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर फिर से लगा दिए। अभी समझ में आ गया आपको बेटा? देखो लाइक फ्रैक्शन मतलब देयर इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं पर्टिकुलर थिंग के लिए। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, सी। The question number C is 6/8 and 4/8। हाँ जी, which one is greater? 6 is greater। Very good, 6 is greater। सबको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत इजी है। बुक में ही कर रहे हैं ना सब लोग बेटा? डू इट इन बुक बेटा प्लीज, है ना, कॉपी में नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं है कॉपी की, फालतू में आपको कॉपी में वैसे भी बहुत काम करना पड़ता है। So I have decided this question should be in book. Now the question number D, 1/5 and 3/5. Which one is greater? 1/5 or 3/5? Which one is greater? Very good, Samiran. 3 is greater. Very good. Okay, so this is the question. 3/5 is good. Very good, Tanis. Anya, 3. Very good. Anya Agrawal. Very good, beta. Okay, now we are moving to the question number 3. Question number 3 is similar question, and we just have to put the circle. We will do this also in the book. हम ये वाला क्वेश्चन भी बुक में ही करेंगे बेटा, and we just have to write the question number 3. You just have to circle the smallest fraction. Circle the smallest fraction. सबसे छोटा कौन है ये बताना है। सबसे छोटा कौन है यही तो बताना है। So the A1 is having 2/5, 1/5 and 3/5. Which one is smaller? Which one is smaller? सबका आंसर आना चाहिए तभी मैं उसको सर्कल करूंगा बेटा। आन्या शर्मा is saying 1. Where are the other? Pooja Agrawal is saying 1. Tanis is saying 1. Very good. Atharv is saying 1. Amaulik is saying 1. Purav is saying 1. Arav is saying 1. बेटा सबका आंसर आना चाहिए। सब is saying 1. Very good. Faisal is also saying 1. Amaulik is saying 1. Pandey ji is also saying 1. So this one is the smallest fraction. है ना easy? कितना easy है ना? Now next one is B. 11, 9 and 4. 11, 9 and 4 upon 17 upon 17 upon 17. Which one is smaller? Which one is smaller? 4. Everyone know that? किसी को भी डाउट है बेटा तो प्लीज पूछ लेना। अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ लेंगे। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर सी। द क्वेश्चन नंबर सी इज 5, 14, 3. 5, 14 and 3. Fractions are with 18, 18, 18 and 18. Which one is smaller? 3. Everyone should know the answer. Yes, everyone should know the
आंसर। सबको आना चाहिए, बहुत ही इजी है सर ये तो। सर ये तो बच्चों वाला खेल लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल। नाउ द क्वेश्चन नंबर डी, द पार्ट डी इज 2, 1 and 6. 2, 1 and 6. The denominator is 7, 7 and 7. Which one is smaller? हाँ जी, 1 is smaller. Very good. तो सबको समझ में आ गया, लाइक फ्रैक्शंस में हम लोग स्मॉलर फ्रैक्शन आराम से ढूंढ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 4। हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एंड यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। सभी लोग अपने फेयर नोटबुक को ओपन कर लेंगे और उसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सर के साथ ही कर लेंगे बेटा, बहुत ही इजी है, जल्दी कर लो। चलो ओपन करो जल्दी से। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में कर लिया, बट सर के साथ में कर लोगे तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी कि होमवर्क ज्यादा है ना, तो आपको बाद में काम करने के लिए कम हो जाएगा। तो चलो सर के साथ में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इन योर फेयर नोटबुक, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इन योर फेयर नोटबुक। सर आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड। बुक में कर लिया ताशी ने, बुक में नहीं करना बेटा, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज असेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी इजी है ना। Ascending order. The question number 4 is ascending order. Now the A part is 18, 11, 19 and 3. And the denominator is 20, 20, 20 and 20. चलो अब जल्दी से बना दो इनका ascending order. Ascending order लिखेंगे बेटा। The ascending order is from smaller to bigger. Smaller to bigger is this ascending order. जैसे हम assembly में लगते हैं, the assembly order is the ascending order. So which one will come first? सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले कौन आ जाएगा बेटा? कहाँ गए सभी बच्चे? वेरी गुड। सबसे पहले कौन आएगा? आंसर चैट में नहीं आ रहा है। 3। वेरी गुड, 3 लिख दिया साहब। उसके बाद में कौन आएगा? 3 के बाद में कौन आएगा? जल्दी से बेटा, 3 के बाद में जल्दी बताओ, तभी लिखूंगा मैं, नहीं तो मैं नहीं लिखने वाला आज। 11। ओके 11 आ जाए। इतना इजी है कि सर को तो करना भी नहीं चाहिए बोर्ड पर। उसके बाद में कौन आएगा? 11 के बाद में कौन आएगा? 18। वेरी गुड। 18 के बाद कौन आएगा? जल्दी बताओ। 18 के बाद कौन आ जाएगा? 19। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या सर को ये बोर्ड पे करने चाहिए क्वेश्चंस? इतने इजी क्वेश्चंस? क्या इतने इजी क्वेश्चन सर बोर्ड पे करेंगे? नहीं सर, एक तो करके दिखाना पड़ेगा। सो बी इज इन योर होमवर्क। बी जल्दी से कर लो, होमवर्क में है। ओके जल्दी कर लो बी, होमवर्क में। बहुत ही इजी है बेटा, बहुत फास्टली आप कर लोगे। आई नो एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5। और जिनने कर लिया क्वेश्चन नंबर बी होमवर्क में, जल्दी मुझे बता दो सर मैंने कर लिया, दैट आई हैव डन बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, order, descending order. A is 2, 1, 3, 4. A is 2, 1, 3, 4. And the denominator is 5. Array sir, 5 and 5. So the descending order is opposite of ascending order. The descending order is opposite of ascending order, means bigger to smaller. Bigger to smaller. So which one will come first? Very good. Jaldi batao. 4. Madhav is saying 4, 3, 2, 1. Very good. 4, 3, 2 and 1. सबके नीचे लिख दो 5. इजी है। हाँ जी इजी है, जल्दी बताया करो बेटा। इज इट इजी? एंड बी पार्ट इज इन योर होमवर्क। जल्दी कर लो बी पार्ट को भी, जल्दी कर लो, बहुत जल्दी कर लो। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 1। वेरी गुड तनिष, वेरी गुड तासी, यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। देखो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर
1 करेंगे, जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेगा, आपके दिमाग के साथ खेलेगा। ये क्या करेगा, खेलेगा। बट क्या सर आपको दिमाग के साथ इसको खेलने देंगे? नहीं सर, आपके दिमाग के साथ इस बच्चे को नहीं खेलने देंगे, और बहुत ही इजीली आपको समझाएंगे हाउ विल वी चेंज a unlike fraction to the like fraction. Okay, are you ready everyone? So the question number 1 is change, और convert भी लिखा हो सकता है, right? convert भी, हाँ convert ही लिखा हो सकता है, convert unlike to like fractions, है ना। चलो अब देखो जादू सर का है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a part is 4/2 and 9/8। एलसीएम निकालना तो सबको आता है ना। अच्छा, कौन है जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता? जल्दी बता दो मुझे बेटा कि सर हमें एलसीएम निकालना नहीं आता। हाँ जी, कौन है जिसको एलसीएम नहीं आता? मुझे जानना है। सबको आता है? करें फिर कंटिन्यू। हाँ जी, सो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 and 8। चलो मुझे बताओ जल्दी से, LCM of 2 and 8। What is the LCM of 2 and 8 बेटा? Everyone will find the LCM of 2 and 8। और जिनको प्रॉब्लम आती है वो देखो यहां देख लो, है ना। जिनको आता है वो जल्दी से बताएंगे, और जिनको नहीं आता है वो यहां देखेंगे बोर्ड पर, है ना। जिनको नहीं आता है वो बोर्ड पर देखेंगे, और जिनको आता है वो मुझे फाइंड करके बताएंगे। देखो क्या करते हैं हम, 2 लिखा और 8 लिखा, है ना। अब किस नंबर से हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? किस नंबर से हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? वेरी गुड, पूरब का आंसर आ गया। पता नहीं कितना बड़ा आंसर आ रहा है। हेमांग का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। 2 से कर सकते हैं डिवाइड, तो चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से हमने 2 को डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। 2 से हमने 8 को डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा, राइट। अब हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? ऐसा कोई नंबर है जो 4 को डिवाइड कर सकता है? हाँ जी, 2 है सर। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते तो 1 ही लिखेंगे। 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं तो 2 ही लिखेंगे ना। अभी हम किससे डिवाइड करेंगे? अगेन बाय 2। 2 से हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते तो 1 ही लिखेंगे। 2 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही लिखेंगे। ये वाला प्रोसीजर जिससे हम एलसीएम फाइंड करते हैं, जब तक सभी 1 ना आ जाएं तब तक हम करते जाते हैं। सो द एलसीएम इज 2 multiply by 2 multiply by 2 and this will be 8. So LCM is 8. अब ये LCM 8 आ गया, इसका मतलब क्या है सर? सर आपने LCM निकलवाया, इतनी मेहनत करवाई, इसका क्या मतलब है अब सर? इसका मतलब ये है कि देखो 4/2 है, इसमें कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें डिनोमिनेटर 8 मिल जाए, है ना। और दूसरा वाला क्या है? 9/8, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें डिनोमिनेटर 8 मिल जाए, ठीक है। तो सर यहां क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी बताओ सर, यहां क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट विल बी 4। तो सर यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 16। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 8। अब यहां क्या करेंगे सर? ये वाला 8 उठाया और इसको 8 से ही डिवाइड किया तो हमारा क्या आ जाएगा? 1। तो यहां क्या लिखेंगे? 1 and 1,
हाँ जी, देखो ये सबसे इजी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो मैंने सबसे पहले बता दिया है। बाकी जितने भी मेथड में बताने वाला हूं आगे आपको, वो सारे के सारे हार्ड हो जाएंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वो ना बताऊं आपको। ठीक है, आपको जिसको भी समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन नंबर बी करेंगे हमारे साथ में, अपनी कॉपी में ही करेंगे बेटा, है ना। सब लोग एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। वी हैव टू कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन टू द लाइक फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं 2 and 8, उनको एक जैसा दिखना चाहिए, चाहे कोई भी नंबर आ जाए लेकिन एक जैसा ही होना चाहिए। तो फाइनली जो हमने फाइंड किए हैं वो है 16/8 एंड 9/8। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर कौन है? 8 और 8। मतलब अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं। एंड आपने देखा हमने कौन सा मेथड यूज किया है यहां पे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और 9/8 तो 9/8 ही है उधर, है ना। सो these two are the like fractions and these two are the equivalent fractions. ओके, तो अनलाइक फ्रैक्शन का क्या मतलब है? कि उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है और उन्हें कन्वर्ट किस में करना है? लाइक फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब है कि इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया 2 और 8 का। जिनको सेम बनाना है उन्हीं का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 8 आ गया। एलसीएम लेने के बाद जब हमारे पास 8 आ गया तो हमने क्या करना है? फिर आगे देखो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जब हमारे पास एलसीएम 8 आ गया तो क्या करना है सर? फिर तो कुछ नहीं करना है, फिर तो हमारे पास बहुत ही इजी मेथड है। देखो फिर क्या करना है, हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 8 बनाना है, राइट। तो हमने सबसे पहले 4/2 का बनाएंगे। 4/2 में हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है टू गेट दिस डिनोमिनेटर। यही डिनोमिनेटर चाहिए ना हमें, तो हमें क्या चाहिए? डिनोमिनेटर 8 चाहिए, है ना। 4/2 में क्या मल्टीप्लाई करें? दोनों जगह पे सेम नंबर ही मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमें वो 8 मिल जाए, है ना। आप बिना डिवाइड करे भी बता सकते हो। एंड द सेकेंड वन इज 9/8। इन दोनों में भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम कि हमें डिनोमिनेटर 8 मिल जाए। चलो बताओ, बिना डिवाइड करे बताओ यहां पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी, मुझे डिनोमिनेटर 8 मिल जाएगा। 2 में 2 2 से तो 4 हो जाएंगे बेटा। अरे बेटा क्या कर रहे हो? 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 8 आ जाए? 4। वेरी गुड। क्या मल्टीप्लाई कर दूं मैं? सर 4 मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करो? 4 मल्टीप्लाई करो। अब मैंने डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई किया है तो मैं न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। और मैंने 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 16 आ गया, है ना। ऐसे ही अब मुझे यहां बताओ किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 8 में। 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 8 ही मिल जाए? वेरी गुड, 1। सर 1 का मल्टीप्लाई कर दो। आ गया समझ में? सो 16/8 एंड 9/8 are like fractions. ठीक है, चलो अब हम जल्दी से बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट इज 3/7 एंड 6/21। देखो और इजीली समझ में आएगा आपको। जितने एक ही क्वेश्चन में पूरा तरह से समझ में नहीं आता है बेटा, है ना। दूसरे क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। सो द क्वेश्चन इज 3/7 एंड 6/21। तो देखो यहां पे डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हैं। यहां 7 है या 21 है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम क्यों करना है? क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। टू मेक द लाइक फ्रैक्शन वी मस्ट डू द डिनोमिनेटर सेम। तो हमने क्या किया? इनके डिनोमिनेटर्स का क्या निकाल देंगे हम? इनके डिनोमिनेटर्स का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। इनके डिनोमिनेटर्स का क्या फाइंड करेंगे हम?
LCM of 7 and 21. LCM of 7 and 21. सभी लोग फाइंड करेंगे LCM of 7 and 21. तो LCM of 7 and 21 is very easy. तो हम यहां पे सबसे पहले निकालेंगे 7 और 21 का LCM. सर जल्दी फाइंड करो. देखो 7 और 21 का LCM. तो हम सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से. 7 में डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा. एंड 7 से 1 and 1. LCM will be 3 multiplied by 7 is equals to 21. तो LCM क्या आ जाएगा इनका? 21 आ जाएगा. LCM क्या आ जाएगा इनका? 21 आ गया. LCM क्या आ गया? 21 आ गया. ओके सर, अब क्या करना है? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से बेटा. हमने LCM निकाल लिया, यहां तक तो डाउट होना भी नहीं चाहिए. LCM क्यों निकाला है? क्योंकि हमें उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है ना. अब मुझे ये वाला 7 भी 21 बनाना है और 21 भी 21 बनाना है. तो देखो मैं क्या करूंगा, 3/21, 3/7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बना सकते हैं. तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको क्या मिल जाए डिनोमिनेटर में? 21, है ना. और 6/21, 6/21 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको कौन मिल जाए? डिनोमिनेटर में 21 मिल जाए. ठीक है, तो बताओ मुझे यहां पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 मल्टीप्लाई कर देंगे. अरे सर बहुत इजी है. 3 का अपर में, 3 का लोअर में. सो 3 7s are 21, 3 3s are 9. और यहां पे क्या करेंगे? यहां पे क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. क्योंकि 1 का डिनोमिनेटर तो हमारे पास पहले से ही 21 है. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे, है ना. इजी, ये भी इजी है. बस एक बार हमें पता लग जाए कि एलसीएम क्या है, फिर तो हम फाइंड कर लेंगे. सो वन मोर क्वेश्चन वी विल डू. द क्वेश्चन नंबर सी. द क्वेश्चन नंबर सी इज 2/10 and 2/10 and 5/15. 2/10 and 5/15. तो अब मुझे बताओ एलसीएम किसका फाइंड करेंगे हम? एलसीएम किस चीज का फाइंड करना है बेटा? जल्दी बताओ मुझे. एलसीएम कौन से नंबर का फाइंड करना है? चलो सभी लोग बताओ, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए. दैट्स इट कि हमें इसका और इसका एलसीएम फाइंड करना है. हाँ जी, एलसीएम किस का फाइंड करना है? जल्दी बता दो. अब सभी लोग बताएंगे. देखो कोई रहना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, है ना. किस का फाइंड करेंगे? हाँ यही तो मुझे जानना है, यही तो मुझे जानना है बेटा. डिनोमिनेटर में कौन कौन है? जल्दी बताओ मुझे. डिनोमिनेटर में कौन कौन है? 10 and 15. कौन कौन है? 10 and 15. जो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो जो डिनोमिनेटर में है उसी का हम एलसीएम निकालेंगे. तो डिनोमिनेटर में कौन है? यहां पे 10. यहां कौन है? 15. केवल डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे. तो एलसीएम ऑफ 10 and 15. तो कुछ बच्चों के डाउट क्लियर हो गए होंगे यहां पे. ठीक है कि एलसीएम किसका निकालना है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा कुछ बच्चों का. अब एलसीएम कैसे निकालना है वो मैं नहीं बताऊंगा. एलसीएम के लिए पूरा एक चैप्टर पढ़ाया है बेटा, और मैंने यहां भी बता दिया कैसे निकालेंगे. तो एलसीएम विल बी 30. एलसीएम क्या आ जाएगा? 30. वेरी गुड छवि. छवि इज वेरी परफेक्ट टू फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ. वेरी गुड छवि. नाउ एलसीएम हमें पता लग गया. अब एलसीएम पता चल गया, इसका क्या मतलब है कि मुझे ये डिनोमिनेटर भी 30 बनाना है और ये वाला डिनोमिनेटर भी 30 बनाना है. तो मतलब 2/10 इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 10 की जगह क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए, है ना. और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है 5/15. इसमें भी मुझे क्या चाहिए? 15 की जगह पे 30 आना चाहिए. इस 10 की जगह पे 30 आना चाहिए, इस 15 की जगह पे 30 आना चाहिए. तो मुझे बताओ यहां 10 में मैं किस चीज का मल्टीप्लाई कर दूं? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए. 10 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 30 आ जाएगा? बहुत इजी है बेटा. अर्नव ने तो आंसर भी बता दिया 3. बहुत इजी है. छवि का आंसर भी आ गया 3. बहुत ही इजी है. बस 3 का मल्टीप्लाई कर दूं. अब जब डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है
तो न्यूमरेटर में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? देव प्रताप ने बिल्कुल सही बताया, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 2s are 6। अब मुझे बताओ यहां किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे? 15 में किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ जी, 15 में किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी गुड छवि। छवि इज सेइंग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 15 2s are 30। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 का मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सो द 6 upon 30 and 10 upon 30 आर लाइक फ्रैक्शंस। ये लाइक फ्रैक्शन क्यों हो गए? क्योंकि अब इनका डिनोमिनेटर 30 30 30 30 है। पहले डिनोमिनेटर क्या था? 10 and 15। अब डिनोमिनेटर क्या है? 30 and 30। तो हमने 2/10 को क्या बना दिया? 6/30 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया है। 5/15 को क्या बना दिया? 10/30, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया है। तो इसको हम 2/10 भी बोल सकते हैं, इसको हम 5/15 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। हमने बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में बनाया था, राइट? नाउ थैंक यू एवरीवन एंड डी पार्ट इज इन योर होमवर्क। डी पार्ट होमवर्क में ये सी वाला था।